Hello and very warm welcome to this another worthy episode of Parak. Today, I, Sanskar Sihoria, your host, is going to take you throughout this whole discussion. And the topic of our discussion is climate change. We all know what climate change is. Vasudhaiv Kutumbakam. Our world is a family. The notion that we give to the whole world is indeed needed at this particular juncture because it is needed to protect our Mother Earth from the catastrophic effects of climate crisis. And climate crisis is not something whose consequences are local but global. And I'll not be wrong if I call it as the humanity's greatest threat. To discuss all the stuffs, I have my two special student guests, Miss Radhika Sharma and Miss Manvi Saraswat. I welcome you all. I welcome both of you. And these both are the students of University of Delhi and pursuing their graduation. So to start, I would like to take introductory remarks from both of you, starting with Radhika, followed by Manvi. Radhika, you may please proceed. Okay, so thank you संस्कार for inviting me into this fruitful session. जैसे कि आपने बताया कि जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, ये थ्रेट है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वैश्विक समाज के सामने वर्तमान समय में जो जलवायु परिवर्तन है, ये एक चुनौती के रूप में खड़ा है और इससे निपटना या इसका समाधान पाना हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है और ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 100 वर्षों में जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। अगर हम सी लेवल की बात करें तो समुद्र स्तर 8 इंच की डिग्री से उसमें बढ़ोतरी पाई गई है। ये सभी जो सूचक है वो जलवायु परिवर्तन के ही सूचक है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है। हम देख चुके हैं कि हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट में आग लग जाना, कनाडा में ही डोंग का पाया जाना, इसके साथ ही साथ मालदीव जो खुद एक तटीय इलाका है उसका महासागर में डूबने का खतरा उस पर मंडराना, ये सभी जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव है जो हम सबको देखने को इस समय मिल रहे हैं। 1980 से 2011 के बीच एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के तकरीबन 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वैज्ञानिकों ने भी अब हम सबको, मानव सभ्यता को एक चेतावनी दे दी है कि यदि हमने गंभीरता से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विचार नहीं किया तो आने वाले वर्षों में जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री फ़ारेनहाइट से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बढ़ सकता है, जो अपने साथ अनेकों विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। तो हम सभी को जरूरत है कि हम गंभीरता से इस विषय पर विचार करें। सो दैट इज माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क। थैंक यू राधिका। और निश्चित तौर पर जो आपने सारी बातें कही कि जिस तरीके से समुद्री स्तरों का बढ़ना है, तापमान का बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है हमारे लिए। मानवी, यू प्लीज प्रोसीड। Thank you so much, Sanskar. As Barack Obama said, we are the first generation to feel the climate change and the last generation who can do something about it. If I talk about climate change, so climate change is generally defined as the significant variation in average weather conditions, say conditions becoming more warmer, wetter, or drier for several decades or more. So basically, this is a long-term trend that differentiates the climate change with natural weather variability. And this is a trend that is disrupting national economies and is affecting lives on every country on every continent. And for nearly 3 decades or more, the UN decade has been making countries to come to global climate summits, which are called COPs, which stands for Conference of the Parties. And for the first time, you can say something momentous happened this year. Every country agreed to limit the levels of global warming well below 2 degrees, aiming for 1.5 degrees. And how to deal with the impact of climate change as well was discussed. And how to make money to deliver on these aims was discussed in COP26 of this year as well. And that's how basically you can say the Paris Agreement was also born. And the commitment, if I talk about, of 1.5 degrees is important because every fraction of degree of warming that is more, that will result in many more lives lost and many livelihoods damaged. So basically, अंडर दिस पेरिस एग्रीमेंट सारी कंट्रीज आती हैं और अपने अपने जो नेशनल प्लान्स है वो पुट फॉरवर्ड करती हैं दैट हाउ दे विल डील विद क्लाइमेट चेंज, व्हिच आर बेसिकली कॉल्ड एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस और एनडीसीज. So NDCs, you can say, these are the heart of the Paris Agreement and the means, you can say, to achieve those long-term goals set by the Paris Agreement. NDCs अगर हम बात करें तो आर द एफर्ट्स कि हर कंट्री कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकने वाली है, कैसे रिड्यूस करने वाली है एमिशंस को, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो यही क्लाइमेट एक्शंस जो हर कंट्री ले रही है या जो एनडीसीज हैं, उन्हीं से हमें पता चलेगा कि आगे हम अपने क्लाइमेट चेंज को सही कर पाएंगे, हम वो लॉन्ग टर्म गोल्स पेरिस एग्रीमेंट के अचीव कर पाएंगे या नहीं. सो दिस इज बेसिकली कि हमें एक ग्लोबल पीकिंग लेवल रीच करना ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस एज वेल.
ताकि एक बैलेंस बना रहे बिटवीन द एंथ्रोपोजेनिक मिशंस बाय सोर्सेज एंड द रिमूवल ऑफ सिंक्स बाय द ग्रीन हाउस एमिशन गैसेज एज वेल। तो ग्रीन हाउस एमिशंस की अगर हम बात करते हैं उसमें भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की पर्टिकुलरली पे मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत है फोकस करने की। अब ये बात रही एनडीसीज और पेरिस एग्रीमेंट की। अगर मैं बात करूं कि हम उन लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, तो वो एक डिफरेंस रहेगा डेवलप्ड कंट्रीज में भी और डेवलपिंग कंट्रीज में भी। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है थोड़ा इजी कि वो लोग शायद अचीव कर पाए वो जो गोल्स या जो एनडीसीज उन्होंने सेट करी हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास और भी मेजर इश्यूज हैं टू फोकस ऑन, बी इट पॉवर्टी और बी इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हो सकता है उन्हें थोड़ा टाइम लगे टू रीच दैट स्टेज of overcoming their climate change basically. Another important concern if I talk about, I think that is of migratory birds. Migratory birds का आप लोग भी सब notice कर रहे होंगे क्योंकि shifts में थोड़ा change हो रहा है। वो ना अर्ली स्प्रिंग में जल्दी आ जाती हैं एट देयर ब्रीडिंग साइट्स, अगर मैं एज अ होल बात करूं, जिसकी वजह से इट इज मेकिंग देम डिफिकल्ट टू फाइंड फूड और टू अट्रैक्ट मेट्स। And scientists have also warned this ecological mismatch that can reduce bird population. And this ecological mismatch has already reduced 84% of the bird population, which is listed under the Convention of the Conservation of the Migratory Species, which is under threat. तो बेसिकली इस इकोलॉजिकल मिसमैच को हमें ठीक करना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं ऑफ द वर्ल्ड, सो पाइट फ्लाईकैचर इज अ बर्ड which breeds in द सब सहारन अफ्रीका एंड इन यूरोप, तो उसे भी काफी दिक्कत हो रही है। एंड दी साइबेरियन क्रेन का सबने एग्जांपल सुना होगा, which breeds in Siberia and in the winters in China. So you can see the trend कि लोकल फिनोलॉजी को क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी उठानी पड़ रही हैं। So that's all. Thank you. Thank you, Manvi. And you definitely greatly talked about the migratory birds, the NDCs. I think NDCs is very important because it is about the globe. Climate change is not just about local condition, but about the globe. So it's very important that every country should form their own policies and work accordingly. Rightly you mentioned about it. So Radhika, जैसे कि मानवी ने बात करी COP26 की, पेरिस एग्रीमेंट की, तो हम जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट को ऐसा माना जाता है कि जब हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं तो वो एक बहुत हद तक बड़ा माइलस्टोन निकल कर आया था, जहाँ पे बहुत सारे देश आपस में मिलकर उनके अंदर एक समझौता बना था। तो क्या था वो पेरिस एग्रीमेंट और किस प्रकार के लक्ष्य उसके अंदर डाले गए थे और किस हद तक वो सफल रहा है? जी संस्कार, बिल्कुल जैसे कि मानवी ने भी अभी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज में, जलवायु परिवर्तन में। जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो उसका मेन मोटो था वो यही था कि ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए और हम एक सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो सभी देश मिलकर अचीव कर सके और जिससे कि हम अपने क्लाइमेट को बचा सके। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो एक तरह से हम उसे सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर देख सकते हैं। 2015 में जैसे कि COP26 की आपने बात की, UNFCCC की प्रत्येक वर्ष बैठक की जाती है और इस वर्ष भी COP26 उसकी 26वीं बैठक हुई, कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज। और COP21 जब हुआ था 2015 में पेरिस में, तब पेरिस समझौता या पेरिस डील उस समय सामने निकल करके आया और विश्व के तकरीबन 195 कंट्रीज वहां पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति बनाई कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और इस जो पेरिस एग्रीमेंट है उसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2016 को लागू किया गया था और इसकी जो वार्ता थी वो 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 के बीच में की गई थी पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में COP21 के टाइम पर। जो भारत है, भारत ने अपनी जो भागीदारी है वो पेरिस एग्रीमेंट में 2 अक्टूबर 2016 को दर्ज की थी। 2 अक्टूबर जो हम सभी के लिए यादगार दिवस होता है, महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, उस दिन भारत ने अपना योगदान जो पेरिस एग्रीमेंट में दिया था। पेरिस एग्रीमेंट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये एक पर्यावरणीय समझौता था, पर्यावरण को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं उसके लिए ये एग्रीमेंट था और इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए जो सामूहिक तौर पर जिन्हें हम अचीव कर सकते थे। जो पहला लक्ष्य था वह था वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना, या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री हुआ करता था वहां तक उसे लेके आना। तो ये उसका पहला टारगेट था। जो सेकंड टारगेट था वो ये रखा गया पेरिस एग्रीमेंट में कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, वी ऑल नो व्हाट द ह्यूमन एक्टिविटीज, आधी से ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही होती है। तो जो सेकंड लक्ष्य है वो रखा गया कि हम अपनी मानवीय गतिविधियों को इस प्रकार से सीमित करेंगे, उन्हें इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस या CO2 का जो एमिशन होता है वो नेचुरली एब्जॉर्ब कर लिया जाए नेचर के द्वारा ही, मिट्टी के द्वारा, महासागरों के द्वारा, समुद्रों के द्वारा। ये सभी चीजें जितने भी CO2 निकलते हैं उसको नेचुरली एब्जॉर्ब कर सके, हम अपनी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको यहाँ तक सीमित करेंगे। ये सेकंड उसका लक्ष्य रखा गया।
थर्डली जो उसका टारगेट था वो था फाइनेंस क्लाइमेट। यहाँ पर एक टर्म निकल करके आया फाइनेंस क्लाइमेट। सो व्हाट इज इट? इसमें ये था कि जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे कि मानवी ने भी डेवलप कंट्रीज के बारे में मेंशन किया है कि अगर हम कोई भी टारगेट रखते हैं तो डेवलप कंट्रीज के पास उतनी टेक्नोलॉजीज अच्छी होती है कि वो उनको अचीव कर सकती हैं, परंतु जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश है, उनके पास वो विकसित तकनीकें नहीं होती है। तो यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस को इंट्रोड्यूस कराया गया और कहा गया कि जो भी विकसित देश है, जो अमीर देश है, वो गरीब देशों को, और जो विकासशील देश है उन्हें ग्रीन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा जिससे कि वो लोग भी अपना डेवलपमेंट भी कर सके, गरीब देश अपने डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रीन एनवायरमेंट की तरफ भी कुछ कदम बढ़ा सके। तो फाइनेंस क्लाइमेट के जरिए एक हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिठाया गया था गरीब देश और अमीर देशों के बीच में। तो ये तीन उसकी मुख्य बातें निकल करके आई थी। अगर पेरिस एग्रीमेंट को हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये टेक्निक, क्षमता निर्माण और फाइनेंस, इन तीनों को मिला करके एक फ्रेमवर्क मुहैया कराता था जिसमें पूरे देश, सभी देशों ने विश्व के साथ में अपनी भागीदारी निभाई। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है जो जानने योग्य है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इसकी बात शुरू हुई थी। इंडिया अभी तक भी इसका सदस्य है और इंडिया अपने पथ पर अग्रसर है, वह अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, जबकि अमेरिका, जो कि पूरे विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, अमेरिका द्वारा पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकला जा चुका है, जो अपने आप में एक बहुत ही, मैं कहूंगी, एक सोचने, एक चिंता करने वाला विषय है, जबकि इंडिया अभी भी इसका एक मेंबर बना हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट निसंदेह तौर पर एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट था क्योंकि इसमें सभी देशों के हितों को भी ध्यान में रखा गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। एक सामूहिक जिम्मेदारी हम कह सकते हैं इसे। काफी अच्छे तरीके से राधिका आपने उसके बारे में बताया और बिल्कुल मैं इस बारे में बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर ये जो लक्ष्य की हमने बात करी गई, अगर ये सारे लक्ष्य अचीव करे जाते हैं, सफल होते हैं, तो बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा और जो कि पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हम देखें। जी जी जी। Manvi, now I would like to ask you one thing, that as you know that things have little changed because we are living in unprecedented times of COVID-19. So is it true that we can call it out that COVID-19 also played some significant role in climate crisis, or it's just that level only, which was before pre-COVID? Yes, I totally agree with it क्योंकि कोविड टाइम्स के बाद क्लाइमेट चेंज पे काफी इफेक्ट पड़ा है। और अगर मैं वर्ल्ड को ना देखकर करीब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी इंडिया से रिलेटेड, दैट वाज फ्रॉम द डाटा फ्रॉम सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिन्होंने एनुअल रिपोर्ट निकाली है कि एनवायरनमेंट की इसमें, और उसमें भी कोविड-19 का इम्पैक्ट साफ नजर आ रहा है, और वो भी अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में ज्यादा देखा जाता है। तो उसमें लिखा है कि देयर इज लाइक कोविड टाइम्स में 78% शॉर्टेज हुई रूरल एरियाज को ऑफ मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स एंड 32% इन देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप सब लोग भी मानते हैं कि रूरल एरियाज का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उन लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी क्लाइमेट की वजह से। और क्लाइमेट और ये जो कोविड-19 की अगर मैं बात करूं तो दैट हैज मेड अस टू थिंक, टू फीड एंड टू फील अराउंड कि हमें जरूरत है कि हम मॉनिटर करें अपनी ग्रीन हाउस एमिशंस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को, और एक कार्बन बजट बनाए। ये हमारा एजेंडा रहना चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर पाए उसके एमिशंस को सही तरीके से। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि एक स्लाइट वार्मिंग इफेक्ट और ज्यादा हो गया है, और साइंटिस्ट ने ये बोला है कि बाय 2030 अगर हमने सही कंट्रोल नहीं किया तो हमारा टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग का काफी और लो हो सकता है। तो हमें जरूरत है कि हम इस पर ध्यान दें। और जैसे कि कोविड में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं चल रही थी, एयर पॉल्यूशन भी थोड़ा कम हो गया था, तो एयर पॉल्यूशन कम होने की वजह से क्या हुआ कि देयर आर एरिजोल्स। बेसिकली एरिजोल्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। उनका उनका कि नहीं था, तो एरिजोल्स की जो पार्टिकल्स है उनकी में कमी हो गई, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया। अब ग्लोबल वार्मिंग पे तो ये इसका सीधा इफेक्ट होने के साथ साथ अगर मैं कहूं ओजोन होल या ओजोन लेयर पे भी हमारा काफी डिप्लीशन या कह सकते हैं कि काफी इफेक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का कोविड टाइम्स में भी। तो अभी काफी चीजें हैं वर्ल्ड में भी, और इंडिया ने भी काफी पिछले पास्ट ईयर में क्लाइमेट चेंज को बदलने के लिए काफी कुछ बदलाव करे हैं, लेकिन ये इतने सफिशिएंट नहीं है कि हम प्रॉपर इसे मैनेज कर पाएंगे ढंग से या नहीं। तो अभी भी मुझे लगता है कि काफी सॉल्यूशंस की जरूरत है कि वो आए और हम लोग क्लाइमेट चेंज को सही तरीके से रोक पाए। बिल्कुल मानवी, बदलाव करे गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बदलाव ऐसे होते रहेंगे। बिल्कुल राधिका, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्लाइमेट क्राइसिस की हम बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट लोकल बट ग्लोबल। सो वहां पे एक चर्चा बनी रहती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की कि कौन ज्यादा जिम्मेदार है, और दोनों गुटों की अगर हम बात करें तो दोनों यही कहते हैं कि आप ज्यादा जिम्मेदार हैं और आप ज्यादा जिम्मेदार हैं।
तो किसको हम ज्यादा जिम्मेदार ठहराएं इसके लिए? और जहां से एक हमारा शब्द निकल के आता है क्लाइमेट जस्टिस, तो क्या वह शब्द क्लाइमेट जस्टिस बहुत हद तक सफल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ उनका हक मिला है, या फिर अभी भी वैसी बातें चलती है? जी बिल्कुल संस्कार, जैसे कि आपने बताया कि हमेशा से ये बहस या हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट रहा है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कि हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो मैं अपना यहाँ पे अपना जो मेरा पक्ष है वो मैं ये रखना चाहूंगी। सबसे पहले क्लाइमेट जस्टिस क्या है? देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली अगर हम देखने के बारे में सोचते हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसका रिजल्ट है? ग्रीन हाउस गैसेस के एक्सट्रीम एमिशन का, राइट? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्यों हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने किया? बात साफ हो जाती है यहाँ पर आकर। इंडस्ट्रियलाइजेशन गरीब देश तो नहीं कर सकते, ना ही वो अल्प विकसित देश कर सकते हैं। वो किया गया था एनेक्स 1 की विकसित कंट्रीज के द्वारा, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य जो विकसित देश है वो आते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को विकसित देशों द्वारा इस लेवल तक किया गया कि उन्होंने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हद तक पल्यूट कर दिया, और अब उसका जो दुष्परिणाम है वो पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो क्या जो गरीब राष्ट्र है वो नुकसान की स्थिति में नहीं है? क्योंकि उन्होंने विकसित विकास भी नहीं किया, उन्होंने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को भी नहीं किया, परंतु आज फिर भी वह जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम है, चाहे वह बाढ़ हो, फॉरेस्ट में आग लगना हो, ये ऐसी अनेकों जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, वे उन परिणामों को झेल रहे हैं। तो ये अपने आप में इनजस्टिस वाली सिचुएशन है। यही एक रीजन था जिसकी वजह से क्लाइमेट जस्टिस एक टर्म बाहर निकल करके आया। ये सबसे पहले जो निकल करके आया है वो ग्रेटा थनबर्ग, एक किशोर कार्यकर्ता, स्वीडिश ये किशोर कार्यकर्ता थी, जिन्होंने क्लाइमेट जस्टिस का एक टर्म बाहर निकाला और उन्होंने यूएन के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने इस परेशानी को रखा। उनके द्वारा ये तर्क दिया गया कि पूरे विश्व में जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो कार्बन एमिशन होता है, उसका 1/3 कार्बन एमिशन विकसित राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। जो विकसित राष्ट्र है, जो एनएक्स 1 की कंट्रीज है, वो 1/3 कार्बन एमिशन करती है। जबकि अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो जो उनकी पॉपुलेशन है, डेवलप कंट्रीज की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में केवल और केवल 21 है। तो 21% आबादी हमारे पूरे विश्व की 1/3 कार्बन उत्सर्जन कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूट किसने किया है? ऑब्वियस सी बात है कि डेवलप कंट्रीज ने किया है, अनडाउटेडली उन्होंने ही किया है। अब बात आती है कि हम जो इस स्थिति में है, हम इस स्थिति में है कि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। इसीलिए हम, चाहे हम कोप की मीटिंग्स करते हैं या UNFCCC, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस अभी हम चला रहे हैं पर्यावरण को प्रदूषित ना करने के राह में, उसमें हम सभी नियम कायदे कानून बनाते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि हम इस लिमिट तक ये कार्बन एमिशन करेंगे। लेकिन क्या जिन कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज को अब इस स्थिति में पहुंचाया है, उन पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं लगाई जानी चाहिए? यही मुद्दा जो क्लाइमेट जस्टिस में निकल करके आया कि जो गरीब राष्ट्र हैं उन पर आप रेस्ट्रिक्शंस कम लगाइए, क्योंकि दे नीड कार्बन स्पेस फॉर देयर डेवलपमेंट। अगर आप उन पर बराबर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो उनका डेवलपमेंट जो है वहीं पर रुक जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अमेरिका पर और इंडिया पर, या अमेरिका पर और नेपाल पर सेम तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाए कार्बन उत्सर्जन के, तो क्या ये अपने आप में न्यायपूर्ण है? ये न्यायपूर्ण नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इनजस्टिस है। तो यही यहाँ से ही हमारा क्लाइमेट जस्टिस निकल करके आता है, क्योंकि विकसित राष्ट्र विकसित हो चुके हैं, इसीलिए उन पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। और अगर आप किसी भी आप अंतरराष्ट्रीय समझौता कर रहे हैं तो आपको वहां ध्यान रखना चाहिए कि जो कंट्रीज पर आप किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं, उनकी आप सामाजिक आर्थिक स्थितियों को देखें। आप ये देखिए कि उनका कार्बन उत्सर्जन में कितना योगदान रहा है। ये पूरा जो मुद्दा है वो क्लाइमेट जस्टिस का इस प्रकार से निकल करके आया। ग्रेटा थनबर्ग जी ने सबसे पहले से निकाला। एक हाल ही में हम हाईलाइट देख सकते हैं, COP26 जो भी हाल ही में हुआ था, उसमें भी इस बात को कहा गया कि वी शुडंट फॉरगेट द हिस्टोरिकल एमिशंस। वहां पर भी इस बात को सामने लाया गया है, जो हिस्टोरिकल एमिशंस हुए थे हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नीड सम कार्बन स्पेस फॉर देयर डेवलपमेंट एंड दे कैन नॉट बी टोल्ड टू नॉट टू डेवलप। ये एक बात है और ये एक सही बात है। जो विकसित राष्ट्र है उन पर आप प्रतिबंध ज्यादा लगाइए, और अगर आप प्रतिबंध उन पर ज्यादा लगाएंगे तो फिर हम एक जस्टिस वाली सिचुएशन जो है उसको अपने पूरे समाज में, अपने पूरे विश्व स्तर पर उसे देख सकते हैं। तो यही है क्लाइमेट जस्टिस, कि जस्टिस की जाए प्रत्येक कंट्री के द्वारा, किसी कंट्री पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए और या फिर उसे उसके विकास की गति से ना अलग किया जाए। जो विकसित है उन पर आप प्रतिबंध ज्यादा लगाइए, और ये कहीं ना कहीं हुआ भी है। तो ये क्लाइमेट जस्टिस का पूरा मुद्दा है जो बार बार उठता है, और जब भी ट्रीटीज होती है तो ये सामने आता है, जैसे इस बार COP26 में भी ये सामने निकल करके आया है। जी राधिका, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर कभी ना कभी ये लगता है कि अब जिसने करा उसने तो करा, बट इस टाइम पर ये जरूरी है कि सबके सब देश मिलकर इस चीज के लिए आगे बढ़े। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा डेवलप कंट्रीज के जिम्मा हम ठोक देंगे। डेवलपिंग कंट्रीज का भी कुछ लेना देना, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि वो उसके अंदर भूमिका निभाएं।
उनके उन पर डॉक्यूमेंट। प्रतिबंध लगाए गए हैं, प्रतिबंध इस प्रकार से लगाए गए हैं कि उन पर इस तरह से लगाए जाए जो गरीब देश हैं कि वो अपना डेवलपमेंट कुछ हद तक कर सके, उन्हें थोड़ा सा कार्बन स्पेस दे दीजिए और विकसित राष्ट्रों जी को जी जी, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर धन्यवाद आप धन्यवाद रखिए। राधिका। मानवी, मैं आपसे अभी जानना चाहूंगा कि as you know that World Environment Day is celebrated on 5th June every year. So one interesting thing to note this year was that its theme was ecosystem restoration, right? And we all know what ecosystem is. But when we take this whole term together, that ecosystem restoration, what does it indicate? ओके, सो बेसिकली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होता है रिवाइविंग ओल्ड वाटर बॉडीज और क्रिएटिंग स्पेस फॉर वाइल्ड लाइफ, जनरेटिंग नेचुरल फॉरेस्ट यू कैन से, क्योंकि जितना रिच इकोसिस्टम होगा, रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, उतना रिटर्न में हमें ही ग्रेटर यील्ड ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे, बी इट लार्ज स्टोर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज या टिम्बर, फिश, और यू कैन देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम दैट। तो हमें जरूरत है कि हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करें, या मैं कहूँ कि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और वैसे तो ये जो थीम थी वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एज अ वर्ल्ड होल की बात करी गई है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया के बारे में कहूं तो आप भी देख रहे हैं कि द वाटर एंड एयर क्वालिटी दैट इज करंटली डिटीरियोरेटिंग, और क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है पीपल पर या एग्रीकल्चर पर, दैट इज डायरेक्टली विजिबल। तो इसी के लिए यूएनईपी ने इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में फॉर अ डिकेड लाइक फ्रॉम 2021 टू 2030 एक प्रैक्टिकल गाइड निकाली है। उस प्रैक्टिकल गाइड में काफी रैपिड एक्शंस बताए गए हैं जो आप ले सकते हैं टू कंजर्व इकोसिस्टम, टू कंजर्व क्लाइमेट और फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बेसिकली यू कैन से। तो जो भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स या जो लोग क्लाइमेट के लिए काम करते हैं उसके लिए एक्शंस लेते हैं, तो उस गाइड में, दैट इज अ 21 पेज गाइड जिसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं, और उसमें बेसिकली मेजर 3 पाथवेज का काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बताया गया है जो मैं बताना चाहूंगी। उसका पहला पाथवे ये है कि वी नीड टू टेक एक्शन इन सपोर्ट ऑफ द ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स। ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स जैसे कि जो अभी प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट के ऊपर कोई कर रहा है तो हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, रेदर देन क्रिटिसाइजिंग देम और उसमें सवाल उठाने की बजाय। दूसरा चीज है कि हमें प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबली यूज करना, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग थिंग्स सस्टेनेबली ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बाकी रहे। तीसरी चीज है कि वी नीड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और यू कैन से फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो उसमें हमें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर ही नहीं होते कि इस बार की थीम क्या थी या फिर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अवेयर रहें और आप उसके खिलाफ अपनी वॉइस भी रेज करें कि हाँ, इफ दिस इज रॉन्ग देन दैट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। उसके बाद इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बेसिकली 8 जो की एरियाज है हमारे इकोसिस्टम के, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, पेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट वगैरह, तो उन पे बेसिकली फोकस ज्यादा किया गया है, लाइक फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू कम्युनिटीज, फ्रॉम बिजनेसेस टू गवर्नमेंट्स, एवरीबॉडी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और आप इसका पार्ट कैसे बन पाएंगे, तो एक हैशटैग रिलीज किया गया है, दैट हैशटैग इज हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है और आप सब लोग उसका पार्ट रह सकते हैं और क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए एक अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं अर्थ पर। दैट्स ऑल। थैंक यू मानवी। और जैसे कि आपने कहा, काफी लोगों को पता नहीं होता इन सब के बारे में, थीम्स के बारे में, तो डेफिनेटली हमारे दर्शकों को इसके बारे में पता चला होगा, और जो आपने गाइड का जिक्र करा वो डेफिनेटली हमारे दर्शक जाएंगे और उनको पढ़ना जरूर पसंद करेंगे। तो विदाउट मच फर्दर डिले, आई वुड लाइक टू ड्रॉ क्विक फाइनल कमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू, स्टार्टिंग विद राधिका। ओके संस्कार, सो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा मेरी तरफ से। एक निष्कर्ष या कंक्लूजन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा यही कहना होगा कि जैसे जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और अगर हम किसी भी ग्लोबल प्रॉब्लम से डील करना चाहते हैं तो वहां पर जरूरत है इंडिविजुअल एफर्ट्स की। आप जब तक अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सोचेंगे तब तक हम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। हम सभी इस बात से अवेयर हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो किन किन मशीन्स के थ्रू होता है। वी ऑल नो अबाउट द CFCs, राइट? सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपने घर पर भी रहते हैं, अगर हमारे 3 फ्लोर्स हैं तो हम तीनों फ्लोर्स पे एसी को ना लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि एसी कितना हार्म करता है एनवायरमेंट को। ये हमारा एक इंडिविजुअल एक मोरल ड्यूटी है जिसे हम निभा सकते हैं और ये सभी के लिए पॉसिबल भी है। ऐसा मुझे लगता है कि सभी के लिए पॉसिबल भी होगा। इसके साथ साथ वी ऑल आर लिटरेट, हम जानते हैं व्हाट इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी लोगों के पास जाए, उनसे बातचीत करते समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में उन्हें बताएं, अपनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को अवेयर करें। जो लोग इतनी अवेयरनेस नहीं रखते हैं उनमें हम एक क्यूरियोसिटी
डेवलप करें कि हाँ आपको ये कार्य करने चाहिए, आपको इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए because they are harmful to the environment. So these are some basic words which we all can do. So it would be very helpful for all of us. ये हम कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि यद भावो तद भवति, जो हमारे भाव है, जो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है. तो अगर हम सब एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अपने अंदर बना लेंगे कि हाँ हमारे दृढ़ निश्चय हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वर्षों में हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पोल्यूशन लेवल में हम पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे. पोल्यूशन लेवल जरूर हमारा डिक्रीज होगा और यही हम सबकी कोशिश भी होनी चाहिए. So thank you, Radhika, and definitely our viewers will love to draw the conclusion from your comment. Manvi. ओके सो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में भी बताया कि जो मुझे लगता है द प्राइमरी कंसर्न्स बेसिकली कि हमें अवेयर रहना है. पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या कौन सी ग्लोबल समिट्स हो रही हैं. जैसे इस बार COP26 हुई और हमारा इंडिया का उसमें क्या रोल रहा, या इंडिया की एनडीसीज की अगर मैं बात करूं तो उसके मेजर पॉइंट्स क्या थे. तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस बार एनडीसी में ये कहा कि ही वुड बी जनरेटिंग 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज ही वुड बी making focus on reducing the greenhouse gas emissions, particularly the carbon dioxide. तो 2015 में भी हमने काफी गोल्स अचीव करे हैं इंडिया की अगर मैं बात करूं तो, और अगर हम चाहेंगे कि हम आगे भी ऐसे ही करते रहें, और ये जो गोल जो प्रधानमंत्री जी ने बनाया है हो सकता है हम सब इसे अचीव कर पाए बहुत जल्दी. और अगर नेक्स्ट मैं करूं तो माइग्रेटरी बर्ड्स का भी कंसर्न है, हमें ध्यान देना होगा उन पर, क्योंकि अभी इंडिया की भी बात करूं तो घना नेशनल पार्क में भी जो सेंचुरी है उसमें भी काफी कम हो गया है अब बर्ड्स का आना. तो हमें फोकस करने की जरूरत है और हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने की जरूरत है जैसा कि राधिका ने कहा. साथ ही साथ हमें अवेयर रहने की जरूरत है कि हमारी थीम क्या चल रही है COP26 और या पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या बताया जा रहा है. तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि माता भूमिः पुत्रोः पृथ्वीः, the earth is my mother and I am her child, and we need to protect it. We need to protect it for all the future generations and for human civilization as well. So thank you. Thank you, Manvi, and definitely we will try to protect it, and that especially that shlok was cherry on the top. Thank you. So now, as we have discussed all the major things in this particular discussion, one thing is very clear, that this particular climate crisis is not something which is not very serious. It is a very serious concern for the whole globe. And we should not forget the words by our Mahatma, that is Gandhiji. He said that there's enough for everyone's need, but not enough for anyone's greed. And indeed, he was very much true about it. जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है, छील छील के खाल जमी की टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है. गुलजार साहब के शब्द एकमात्र कविता नहीं बल्कि वास्तविकता बयां करते हैं. और निश्चित तौर पर हमें अपने फर्ज जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो धरती, जो हमारी धरोहर है, हमें सुरक्षित अपनी अगली पीढ़ियों के हाथों में से सौंपना है. क्योंकि अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो शायद कहीं बहुत देर ना हो जाए. Thank you, Manvi and Radhika, for joining us today and sharing your valuable viewpoints. Now, before ending, I would also like to thank our lovely audience, and I hope you will get something very fruitful from this particular discussion. So we will be back with another interesting and fruitful discussion. Until then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.